Hello friends, good morning, namaskar, sat sri akal, vanakkam, adab. Welcome to RK's Academy of Excellence by Ramesh Kumar. Today we are going to start with English Class 12 Core 301 from the book Flamingo, poem number 3rd, A Thing of Beauty by John Keats. Before going with the poem, we should know about one of the greatest poet, John Keats. John Keats was born in the year 1795 and unfortunately he died very young at the age of 26 only in the year 1821. John Keats was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, he was a doctor that time. Keats decided to devote himself wholly to poetry. So just see the magic of poetry here. After being a surgeon during those days, he chose poetry as his career. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. The following is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out, and so he wandered away through the forest and down under the sea. Now we'll start the poem. Before you read, what pleasure does a beautiful thing give us? Immeasurable pleasure it gives us. That's my opinion. Are beautiful things worth treasuring? Yes, they are worth treasuring. Now today this poem is so beautiful. So first once I'll go with the reading of the poem, then I'll try to explain some part of the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of dense despondence of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for a searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. From our dark spirits such as the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon. For a simple sheep and such are daffodils, with the green wool they live in and clear rills, that for themselves a cooling covert make gainst the hot season the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the doom. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal rain pouring onto us from the heavens' brain. Such a lovely poem. Now let's sing. Here in the beginning, first thing, a thing of beauty is a joy forever. Anything of beauty, what is beautiful? Your achievement in life, anything. Whatever, when sometimes you go to some place and you treasure some past good memories, they are beautiful things. And its loveliness increases when you start thinking about those things, then its loveliness, it will increase your happiness many a time. And it will never pass into nothingness. Never it will go in vain. Those beautiful treasured memories will never go in nothingness, but will keep a bower quiet for us. And there are so many things beautiful around us. It is only, as it is said, na, beauty lies in viewer's eyes. It is into our eyes only where we can view the beauties. It said it can be, and a sleep full of sweet dreams.
एक बढ़िया सी नींद मिल जाए, दिन भर मेहनत करने के बाद खूब मेहनत ईमानदारी से काम करें आप खूब बिंदास, उसके बाद अच्छा भोजन ले और सोए, तो हो इससे सुंदर क्या। आई स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये भी बहुत सुंदर चीज है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, एंड इट इज सेड ना, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो हेल्थ, if we are having good health, it's a huge asset for us. And quiet breathing, we are breathing, we are living, so that should be always be good. Therefore, on every morning, are we wreathing a flowery band to bind us to the earth? Here, we should always be close to the nature, flowery band to bind us to the earth. And here this line has been used both in form of alliteration, okay, and metaphor as well. Despite of despondence, there are despondence, desperation in life, sadness in life, of the inhuman dearth. There is dearth of inhumanity among us. Of noble natures, we are away from the natures. We are going far away from the natures. Of the gloomy days. There are so many beautiful things for us to think about, but sometimes we people are sometimes go to the past, old sad days, gloomy days. And sometimes of all the unhealthy and over darkened ways, sometimes we are all surrounded with all this darkness, with all these challenges, with all these problems. Then made for searching us. और जब हम बुरी तरफ फंस जाते हैं, चारों तरफ घोर अंधेरा, कुछ नहीं दिखता है, तो हम वी ऑल लुक फॉर इंस्पिरेशन। बस भगवान को याद कर रहे होते, अपने ऊपर वाले को याद कर रहे होते, बस हे प्रभु, हे गॉड, बचा लो इसमें से। और तभी ओवर डार्कन बेस में और हम ढूंढ रहे होते, तलाश कर रहे होते, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। इन स्पाइट ऑफ ऑल, जो भी और घनी अंधेरी रात कितनी भी क्यों ना हो, सुबह का सूरज बिल्कुल उगेगा। एक पॉजिटिविटी है लाइफ में, बिल्कुल उसको लेके चलना है। चैलेंजेस चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका समाधान देने के लिए ऊपर वाला बैठा हुआ है, और आपकी कोशिश बराबर होनी चाहिए। और जब हमसे ढूंढ रहे, मेड फॉर सर्चिंग इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम तभी जैसे एक घना अंधेरा कमरे में आप हो, कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, आप एक माचिस की तिली से अगर एक कैंडल को जलाते हैं, उस माचिस की तिली से जलाई हुई कैंडल में इतना शक्ति होती है, पूरे अंधेरे को डिस्पर्स कर देती है। उसी तरह कितना भी हम चैलेंजेस में, कितने भी प्रॉब्लम्स में हम घिरे हुए क्यों ना हो, लेकिन जब हम किसी some shape of beauty moves away the pall from a dark, हमारे डार्क स्पिरिट से सारे अंधेरे को गायब कर देती है, सारी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। और ये सुंदर चीजें क्या है? सच द सन, सूर्यदेव, सन गॉड, द मून, ट्रीज, ओल्ड हो, यंग ट्रीज हो, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, पूरा, और स्प्राउट किया हुआ शेडी बून, पूरा वहां पर हरियाली छाई हो। फॉर सिंपल शीप के लिए तो क्या चाहिए भाई? फॉर सिंपल शीप उनको तो बस थोड़ी सी जहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास मिल जाए, उससे बढ़िया क्या हो सकता है उनके लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स को आप देखो वीराने में, जंगलों में, मस्त अपने मस्ती में रहते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस भी वर्ल्ड में, उस हरियाली वाले दुनिया में रहते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में। एंड क्लियर रिल्स, और जो नदी, साफ सुथरी नदी, स्ट्रीम जो चल रही होती है, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, कूलिंग कवर्ड मेक एक सेंसरी इमेज है और ए अलिट्रेशन भी है। जब नदियाँ चलती है तो आसपास का जो मॉइस्चर होता है उस पर ग्रीन ग्रास वगैरह प्लांट ग्रो हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे अगर उसके ऊपर आप चले सुबह सुबह तो कितना बढ़िया आपको लगेगा। जैसे लॉन पे आप चल रहे हो, ड्यू उस पे गिरा हो, उसकी बूंदें गिरी हो, उसके ऊपर आप नंगे पाँव चले, तो कूलिंग कवर्ड बनाते हैं अपने आप में वो सब। गेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी कितनी भी क्यों ना हो, सूरज कितना तेज क्यों ना हो, लेकिन वो खुद कूलिंग कवर्ड बना लेते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक,
आप चाहते हैं जंगलों में जाते हैं तो आपको बहुत सारे ब्रेक झाड़ियाँ वगैरह सब मिलती हैं, बहुत सारे रास्ते में आपको मिलते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम। अब तक हम जीने वाली बात इनकी बात करें, जब जो डोम्स जो मौतें होती हैं, ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। और जो लोग अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, अपने देश की आन बान शान के लिए जो अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, ऐसी मौत हमेशा यादगार के तौर पे रहती हैं। लोग नतमस्तक हो जाते हैं, पूरा देश और झंडा जो झुक जाता है ऐसे लोगों के लिए। वो मौत अति सुंदर होती है। वो बहुत बिरला लोग, बहुत कम लोग को ऐसे मौका मिलता है जिन्हें अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए उन्हें जो है सेक्रीफाइस करने का अवसर मिला है। तो उनकी मौत भी बहुत ही शानदार होती है, उन्हें याद करता है। और यही इसके साथ और सुंदर चीज़ है, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड। और जो सुंदर किस्से कहानियाँ हमने सुने हैं, हमने पढ़े हैं, वो भी हमें बहुत सारे इंस्पिरेशन दे रही होती हैं, प्रेरणा स्रोत है सारे। An endless fountain of immortal drink, immortal अमृत धारा, endless fountain, उसका फुवारा, अमृत धारा का जो फुवारा है हमारे ऊपर continuously गिर रहा होता है। बस हमें देखने की जरूरत है, उसे एहसास करने की जरूरत है। pouring on to us from the heavens, heavens bring, चारों तरह बस स्वर्ग और नरक बस यही है। आपको बस सुंदर चीजें ढूंढने की जरूरत है। और फिर मैं इस पॉइंट को यहाँ कंप्लीट करूँगा कि ब्यूटी क्या है। ब्यूटी लाइज इन द व्यूअर्स आईज। और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन है, जो भी आपको दिख रहा हो अपनी, like the sun, the moon, trees old and young, daffodils, green world, clear rills, small stems। rills मतलब छोटी छोटी नदियाँ जो होती है ना, उन्हें small stems को rills बोलते हैं। mid forest break, musk rose bloom। और जो भी ब्यूटीफुल स्टोरीज हमने पढ़े हैं, सुने हैं, द ग्लोरी एंड ग्रैंडियर, जिन लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बान हुए हैं, सेक्रीफाइस हुए हैं, उनका जो इतिहास है वो सब भी बहुत सुंदर चीज़ें हैं। माइटी पीपल, महान लोग जो रहे हैं, जो अपने अपने समय में जो अच्छा इंसानियत के लिए, इंसान के लिए जो कर गए हैं, वो सब चीज़ें अति सुंदर हैं, बहुत सुंदर चीज़ें हैं। अब इसमें क्वेश्चन सेकंड है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। इतनी चारों तरफ सुंदरता है, अच्छाइयाँ हैं, उसके बाद भी हम इंसान लोग, हमारी फितरत है दुखी रहने का। इसमें है देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉज करती हैं, जो कारण बनती है हमारे सफरिंग का, हमारे पेन का। जैसे और उससे हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं। और हमारे सॉरोफुल डेज, कुछ दिन होते हैं जीवन में बड़े दुखदाई होते हैं, हम उनको लेके बैठे रहते हैं। क्रुएल्टीज, इतना पूरी सृष्टि, पूरा प्रकृति हमें प्यार सिखाती है, एक दूसरे का केयर करना सिखाती है, लेकिन आज भी हम लोग कहीं ना कहीं क्रुएल्टीज, एक दूसरे पे जुल्म करते हैं। लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, नोबल क्वालिटीज बीइंग ह्यूमैनिटी जो है, टेकिंग केयर ऑफ, काइंडनेस, चैरिटी, डोनेशन, ये सब हमें करना चाहिए ना, लेकिन ये सारी क्वालिटीज हमसे गायब हो रही है, इसलिए हम दुखी रहते हैं। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, रात में सोने का टाइम है, रात भर हम जगे रहते हैं, तो और उसके बाद सुबह उठ नहीं पाते हैं, पार्क नहीं जाएंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, तो अनहेल्दी रहेंगे, तो उसके बाद फिर तो आप दिक्कत में रहेंगे। और इस तरह ये सब भी कारण बनते हैं हमारे दुखी होने का। ये तो दुखी होना, सुखी होना तो हमारे मन के अंदर जो सोच है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसमें कुछ कारण है, इसलिए लोग दुखी रहते हैं। इसमें लाइन है, व्हाट डज द लाइन, देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट। ये जो लाइन जॉन कीट्स ने यूज किया है, वो इससे साफ साफ पता चलता है ही इज अ ट्रू नेचर लविंग पोएट। प्रकृति से अगाध प्रेम था उन्हें, बहुत ज्यादा प्रेम था उन्हें।
he or he believes that man and nature are woven into the unbroken bond. जैसे माला के अंदर तरह तरह के फूल गुथे होते हैं, वैसे इंसान और प्रकृति दोनों एक दूसरे से तो अलग हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो जो ऊपर की जो लाइन है सजेस्ट करती है द इंटेंसिटी एंड एटर्निटी ऑफ दिस बॉन्ड, कितना पक्का जोड़ है इंसान का और प्रकृति का, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इस धागे से जिससे बिल्कुल एक दूसरे जुदा हो ही नहीं सकते। जो ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट इन द नेचर अराउंड अस आर लाइक ब्यूटीफुल फ्लावर्स। जैसे तरह तरह के फूल को हम जोड़ते हैं बुके बन जाता है या माला में पिरो देते हैं, वही सुंदर फूल कितना सुंदर माला या बुके बना देते हैं। तो वही है, तो वी रीड देम इनटू अ फ्लावरी बैंड दैट कीप्स अस कनेक्टेड एंड अटैच्ड टू दिस ब्यूटीफुल अर्थ। वही कह रहे सारी सुंदर चीजें जो होती है, हम जैसे एक माला में गुथे हुए तरह तरह के फूल है, इंसान और प्रकृति दोनों एक दूसरे से गुथे हुए, इसका मतलब है। What makes human beings love life in spite of trouble and suffering? जीवन है, ट्रबल आएगा, सफरिंग आएगा, चैलेंजेस आएगा, तो फिर ह्यूमन बीइंग के रूप में हमें कोई धोखा देता है, हमारे साथ बुरा करता है तो हमें दुख होता है, डिस्पोंडेंस होता है, नोबल क्वालिटीज की कमी जब हम किसी दूसरे में देखते हैं तब हमें दुख होता है। और ये सारी जो चीजें हैं वो हमें सैड, दुखी और अत्यंत दुखी बना, लेकिन फिर भी पोएट इसमें हमें बता रहे होते हैं कि इन सब सफरिंग्स के बावजूद, इन सब सफरिंग्स, इन सब परेशानियों, तकलीफों, चैलेंजेस के बावजूद हमें कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। और जीवन जो मिला है इससे अगाढ़ प्रेम रखिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बार जो जीवन मिला इससे अगाढ़ प्रेम करिए और पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचते रहिए। और ये जो होप हमारा, जो आशा है हमारा, ये छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी चीजों में बसा हुआ है, बस उन्हें देखने की जरूरत है। जो हमारे आसपास है, जो हमें हैप्पीनेस, हमें जो जॉय, खुशियां दे रहा होता है, अपने चार्म एंड ब्यूटी से, बस उसे देखने भर की जरूरत है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? इस पर मैंने विशेष ध्यान दिया था कि जो माइटी डेड, जो माइटी लोग रहे हैं डेड, ये अपने फोरफादर्स, अपने पूर्वजों के लिए दिया गया है, जो पावरफुल थे अपने जीवन में, अपने तरीके से, अपने समय में, उनका समय था, और उनके जो वैल्यूज हैं, उनका जो अचीवमेंट्स हैं, उस टाइम में लोगों के साथ जो इंसानियत उन्होंने किया, सोशलिज्म उनके साथ था, समाज के लिए किया, तो यही चीज उनको महान बनाई है, माइटी बनाई है, उन्हें ग्रेट बनाई है अपने समय में जो अच्छा काम करते हैं। और वो ग्रेट इसलिए भी थे ऑफ देयर ग्रांड, ऑफ देयर नोबल, ग्रेट नोबल डीड्स, उसकी वजह से थे महान। इसलिए ग्रांडियर उसके साथ एसोसिएट किया जाता है जो हमारे डेड एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जो आज भी उनके अच्छे कर्मों के लिए उन्हें याद किया जाता है। इसका मैंने और कहा, और जो लोग अपने अपने समय में जब भी देश के ऊपर कोई आंच आया, कोई मुसीबत आया, और देश के लिए तन मन धन से को लेकर के सेक्रीफाइस किया, तो वो भी ग्रांड कहलाए, ठीक है, वो भी ग्रांडियर हैं, उनके वो भी माइटी हैं। जो आज़ादी हमें मिली अंग्रेजों से, उसमें बहुत हजारों लाखों लोगों ने शहादत दी, तो उनकी जो शहादत है वो अपने आप में शानदार है। फिर है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस? क्या बस कहते हैं ना, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इस पहली लाइन में ही उन्होंने बता दिया है। ये नहीं शॉर्ट टर्म पोजीशन है कि बस आज खुशियां, इसको खुशियां एक बार स्टार्ट हो जाती है, वो बिग बैंग इफेक्ट की तरह होती है, वो चलते बढ़ते बढ़ते चली जाती है, वो कभी मतलब खत्म नहीं होती है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर है,
और इसका लास्टिंग इफेक्ट होता हम पे। ये नहीं कि बस अभी हुआ बस काम खत्म, वो एक बार जो खुशियाँ हो गई और रहेगी, जब जब हम उस खुशी को याद करेंगे, कुछ को याद करेंगे, तब तब हम खुशी, हमारे अंदर खुशी विद्यमान होती जाएगी और हम खुश होते जाएंगे। और पोएट कहते हैं कि इसका जो लवलीनेस है, जैसे जैसे हम सोचते जाएंगे उस खुशी के बारे में, वो इंक्रीज होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, जियोमेट्रिकली वो इंक्रीज होता जाएगा फॉर एवरी मोमेंट, एंड इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। कभी वो नथिंगनेस में नहीं जाएगा, कभी वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जो एक बार की खुशी है, जो ब्यूटी है। What images does the poet uses to describe the beautiful bounty of the earth? क्या इमेज पोएट ने क्रिएट किया इस क्वेश्चन में? पोएट ने बहुत सारे इमेजेस यूज किए हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बताया जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। इसका पहले क्वेश्चन में था, क्या कहता था पहले, जैसे सन को उन्होंने बताया, मून को बताया, यंग ट्रीज हो, ओल्ड ट्रीज हो, डैफोडिल्स फ्लावर्स जो वीराने में खिलते हैं, लेकिन जो जिनको मौका मिलता है वो अपने में ही मस्त रहते हैं, वहाँ उन्हें कोई शिकायत नहीं है। स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी जो नदियाँ जो निकलती हैं, क्लियर वाटर, गंगोत्री में आप जाए तो गंगा वहाँ से जो निकलती है वो कल कल धारा करती हुई, क्या शानदार नज़ारा है। थिकेट्स, जंगल में जो थिकेट्स, झाड़ियाँ हो जाती हैं, फॉरेस्ट में आप जंगल में जाए ढेर सारी झाड़ियाँ आपको मिलेंगे, उन झाड़ियों के बीच में जो मस्क रोज जो ब्लूम कर देता है, मस्क रोज आपको मस्त कर देता है, वो भी कम सुंदर चीज नहीं है, अति सुंदर है उसमें। और फिर उसके बाद जो स्ट्राइकिंग इमेज है इस नेचर का, इस प्रकृति का, आहा, बहुत ही सुंदर है। एंडलेस फाउंटेन, ऐसा फाउंटेन है, एंडलेस है, जो हम पर पोरिंग करता, हम पर उड़ेल रहा होता है, विद दिस हेवनली इमोर्टल ड्रिंक, अमृत धारा हम पे डाल रहा होता है, जो कभी नहीं खत्म होने वाली अमृत धारा है। नेक्टर, जिसे कह रहे हैं, thus keeping us in a continuous state of joy। ये रहे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ, आई थिंक दिस वुड बी हेल्पफुल टू यू। नाउ हियर आर सर्टेन, यस, सर्टेन पोएटिक डिवाइसेस, इसको जरूर बुक लीजिए, उसमें मार्क करते जाइएगा आप लोग। जैसे कि इसमें मेटाफर यूज हुआ है, मेटाफर, a flowery band to bind us to the earth। मेटाफर क्या होता है? कंपेयरिंग ऑफ वन थिंग विद द अदर ऑब्जेक्ट को, और उसमें एज और लाइक ना, एज लाइक होगा तो सिमिली हो जाएगा, लेकिन इसे फ्लावरी बैंड, इसमें मेटाफर जो कंपेयर कर रहा है ब्यूटीफुल थिंग्स को, जो सुंदर चीजें, उन्हें गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फ्लावरी बैंड में गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला के साथ कर रहा है, दैट कीप अस रूटेड टू लाइफ डिस्पाइट इट्स डिफिकल्टीज। ये हो गया मेटाफर। और दूसरा मेटाफर इसमें यूज हुआ, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रीम। एंडलेस फाउंटेन है, ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन इटर्नल स्प्रिंग ऑफ डिवाइन सस्टेनेंस, अ ब्लेसिंग फॉर द सोल, उसके साथ इसमें कंपेयर हुआ है। इमेजरी, इसमें सेंस इमेजरी, सेकंड जो पोएटिक डिवाइस है, इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, सेंसरी लैंग्वेज के तौर पे क्रिएट, जैसे विविड पिक्चर्स क्रिएट किया गया इसमें, जैसे डैफोडिल्स, आहा, डैफोडिल्स का नाम आते ही आपके मन में फूल झूमने लगता है, वो दृश्य याद आने लगता है आपको। और जहाँ डैफोडिल्स आए तो ग्रीन वर्ल्ड, नेचर के साथ जंगलों में वहाँ पर झूम रहे होते हैं। और एक पोएम भी डैफोडिल्स के ऊपर पोएम भी लिखी हुई है, आप उसे पढ़िएगा कभी टाइम मिले। ग्रीन वर्ल्ड में जहाँ रहता दिल्ली में, और मस्क रोज ब्लूम, उन झाड़ियों में, कांटेदार झाड़ियों के बीच में जो मस्क रोज भी ब्लूम होते ना, हा, बेशक चारों तरफ कांटे हैं, तभी तो गुलाब को कहते हैं भाई, पूरा जीवन भर संघर्ष करते करते कांटों के बीच में रगड़ते खिसकते आने के बाद लास्ट में ब्लूम। ये हमारे लिए जीवन दर्शन है। एक गुलाब का फूल या जो भी फूल कांटेदार हैं, ये हमें जीवन दर्शन देते हैं, ये जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, ये जीवन भर संघर्ष करते रहे, और अंतिम में आप उस रूप के, उस फूल के जो खुशबू वाले रूप में आप आएंगे, जो आपका अचीवमेंट होगा।
तो कभी संघर्षों से घबराना नहीं है, को बढ़ते जाना है। तो दूसरा इसमें यूज हुआ है कूलिंग कवर्ड। कूलिंग कवर्ड, सी फॉर कूलिंग, सी फॉर कवर्ड, सेंसेशन ऑफ शेड्स एंड कूलनेस। जहां सूर्य की गर्मी पड़ रही वहीं आपको शेड छाया मिल रही, वहीं कूलनेस भी हो रहा है। और जो पेड़ हमें प्रोवाइड करते हैं, और अपीलिंग टू द सेंस ऑफ टच एंड साइट। हमें टच, जैसे लग रहा है एक बार चलते ऐसे लगता है जैसे हम वहीं पर चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं उन ग्रास के ऊपर, और उधर और सूर्य की गर्मी तो है लेकिन इधर पेड़ की छाया और नदी का जो मॉइस्चर से जो ग्रास ग्रो ही, सो ब्यूटीफुल, सो सूदिंग, उसका इफेक्ट है। और एलिट्रेशन इसमें यूज हुआ है, अनुप्रास अलंकार हिंदी में कहते हैं। जैसे फ्लावरी बैंड टू बाइंड, ए फ्लावरी बैंड दोनों है, मेटाफर भी है, और एलिट्रेशन क्या है, एलिट्रेशन एफ फॉर फ्लावरी, सॉरी एफ फ्लावरी बैंड टू बाइंडर, बी से बैंड, बी से बाइंड। एक ही लाइन में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हो एक ही सिलेबल से, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो फ्लावरी बैंड टू बाइंडर्स हो गया। सेकेंड है स्प्राउटिंग शेडी बोन, एस फॉर स्प्राउटिंग, एस फॉर शेडी। और तीसरा सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, एस फॉर सम, एस फॉर शेप्स ऑफ ब्यूटी, ये है। इसके अलावा इसमें जो और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को हम एज ए पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह थे। इसमें ट्रैंक्विल वाटर, द वाटर इज डिस्क्राइब, पानी तो पानी है लेकिन पानी को डिस्क्राइब किया गया है एज हैविंग अ ह्यूमन लाइक क्वालिटी ऑफ कामनेस। जैसे आप लोग झगड़ रहे हो, आपके सीनियर आके समझाते हैं, क्वाइट करा देते हैं, काम करा देते हैं, या जैसे, तो वैसे वो वाला क्वालिटी उसमें दे रहे हैं। द ट्रैंक्विल वाटर इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ह्यूमन लाइक क्वालिटी, कि पानी जो है आहा क्या शांति प्रदान कर रहा है चारों तरफ में। और कूलिंग कवर्ड, कूलिंग कवर्ड जो कूलिंग कवर्ड एलिट्रेशन भी है, कूलिंग कवर्ड आपका इसमें इमेजरी भी है, और कूलिंग कवर्ड आपका पर्सोनिफिकेशन भी है। कवर्ड मतलब एक शेल्टर्ड प्लेस है, ठीक है, शेल्टर्ड प्लेस है, एक्टिवली क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट। जैसे कोई आपको छाया दे रहा है, दे दे तो पेड़ वगैरह है, इनको ऐसे ऐसे कूलिंग कवर्ड दिया गया। सिंबोलिज्म बहुत ही, भाई जॉन किट्स की पोएम हो, इसमें सिंबलिज्म तो होना ही है। सिंपल शीप, एस फॉर सिंपल, एस फॉर शीप, एलिट्रेशन भी है लेकिन सिंबलिज्म क्या है, दीज आर सीन एज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस। सिंपल शीप, सिंपल शीप क्या होता है, इनोसेंसी, इनोसेंस है, डिवाइन ब्यूटी है, और अपने ये सब क्वालिटी किसमें, तो मैनकाइंड में खुद आता है। लाइक मैनकाइंड, मैनकाइंड तो यही है, आपके अंदर इनोसेंसी हो, ज़्यादा किसी के प्रति कोई नफरत या हेट्रेड या ये सब नहीं होना चाहिए, और डिवाइन ब्यूटी, और परहैप्स मैनकाइंड इटसेल्फ से कहा गया। फिर दूसरा सिंबलिज्म है ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जिसमें दीज रिप्रेजेंट प्रोटेक्शन एंड द प्रोविजन ऑफ शेल्टर, इस बारे में। और फिर इसमें इन्वर्जन भी यूज हुआ है, जैसे पोएट लिखते हैं, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड इंस्टेड ऑफ द मोशन वी आर रीडिंग। इसमें सीधा स्टेटमेंट के बजाय उन्होंने क्वेश्चन क्रिएट किया, आर वी रीडिंग, तो इसे इन्वर्जन कहते हैं। आपके अंदर एक क्वेश्चन प्रोवोक किया है, ये सभी। तो आई थिंक फ्रेंड्स यू हैव एंजॉयड दिस वन, इसको ध्यान से पढ़ें, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, विल मीट इन सम अदर वीडियो सून। थैंक यू।